हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम और लेकर आई हूं आप सबके लिए बॉलीवुड टाउन की लेटेस्ट अपडेट से सजा हमारा प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप्स, जिसमें हम बताएंगे आपको बॉलीवुड टाउन के गलियारों के लेटेस्ट बॉलीवुड गपशप और करवाएंगे आपको रूबरू बॉलीवुड स्टार से। तो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस। बैक टू बैक हिट फिल्म्स देने के बाद परिणीति बनी है हर ब्रांड की फर्स्ट चॉइस। दीपिका और रणबीर की रामलीला मचाएगी सिल्वर स्क्रीन पर धूम। और आदित्य और शिव करेंगे अक्षय के साथ बॉसगिरी। तो प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट की। आपको बताते हैं कि संजय लीला भंसाली की रामलीला बिल्कुल रेडी है पर्दे पर अपना धमाल मचाने के लिए। जी हां दोस्तों, दीपिका और रणबीर स्टारर इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च को काफी अच्छे रिव्यूज मिले और इन दोनों की हॉट केमिस्ट्री फिल्म की एक तरह से यूएसपी मानी जा रही है। रामलीला फिल्म का फर्स्ट प्रमोशनल इवेंट, जहां पर सज धज कर पूरे दर्शन के साथ पहुंचे रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोणे अलॉन्ग विद द डायरेक्टर संजय लीला भंसाली। ब्लैक डैशिंग सूट में रणवीर लग रहे थे कंप्लीटली हैंडसम और गोल्डन साड़ी पहने अपने फुल टू इंडियन अवतार में दीपिका भी लग रही थी काफी ब्यूटीफुल। बात करें रामलीला के फर्स्ट लुक की तो इसे व्यूअर्स ने दिया है थम्स अप। भाई अब संजय लीला भंसाली की फिल्म है तो सब कुछ तो लार्जर देन लाइफ होना ही है। इस इवेंट पर दीपिका ने बता दिया अपनी फिल्म को क्लासिक लव स्टोरी। साथ ही दीपिका ने कर डाली संजय लीला भंसाली की ढेर सारी तारीफ। Love stories are classic, you know, in a sense, and there's various ways of telling it. And this is Sanjay Leela Bhansali's way of telling a love story. He's done it with, Hum Dil De Chuke Sanam. He's done it with Devdas. So I think the most special part is how he's going to tell another love story, but in another interesting way, with a new background, you know, with new actors, with a completely new palette. You know, I think Gujarat as a culture itself is something that one is not really explored too much in Hindi cinema, and I think that also is going to be a very exciting part of the film. So it's not just the love story, but also where it's set and the world of the film. Yeah. जहां दीपिका फिल्म की कंसेप्ट को लेकर काफी खुश नजर आई, वहीं रणवीर सिंह तो महज संजय लीला भंसाली के साथ काम करने को लेकर ही काफी खुश हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मिस्टर भंसाली के साथ काम करने को मिला at such a nascent stage in my career. It's a really big deal for me actually, because he truly is a master director. He's a master of his craft. And yes, it is Romeo and Juliet, the classic quintessential love story of two young lovers torn by their warring clans. But it's Mr. Bhansali's take, as is Ram, is my take on Romeo and Juliet for Deepika. It really is, like she said, you know, Gujarat is not explored too much. You saw a flash of it in Hum Dil De Chuke Sanam. This is a very different Gujarat that Mr. Bhansali is exploring here, and I think the excitement, at least for me, an admirer of his films and his cinema, is to look forward to this world that he's created, you know, because it's always original. The kind of, and he is a Gujarati himself. He knows that culture like the back of his hand. That's what's added to the value of the film. It's a, it makes it extra special. काफी बार सुनने में आया था कि दीपिका पादुकोणे फिल्म रामलीला के सेट्स पर काफी इमोशनल हो जाती थी। तो चलिए दीपिका से ही पूछ लेते हैं कि कैसी थी उनकी फिल्म रामलीला की जर्नी। There was a moment where I kind of broke down today for some strange reason. I don't know why, but I think it also is sort of like to see all the effort that we've all put in. It's not been easy, you know. It's been a really mentally, emotionally, physically demanding film over 1 year, and the fact that he is a perfectionist, you know, he doesn't let go of anything, and he looks at things a certain way, and it has to more or less be that way, you know. He has a vision, and it has to, I mean, everyone sort of works towards that. So it's obviously been a very tough journey, you know, as exciting as it was and as challenging as it was, it's also been quite tough. So today to kind of see all of that come together
and I did get a little emotional. वेल डायरेक्टर संजय लीला भंसाली इस बार रणवीर सिंह और दीपिका के साथ फिल्म रामलीला में काम कर रहे हैं। इस इवेंट पर भंसाली ने बताया कि उनकी सारी एनर्जी तो रणवीर सिंह को हैंडल करने में ही लग गई। हमारे जो ये रणवीर सिंह है बहुत ही कमाल के आदमी है, उनको कंटेन करने में मेरे आधी एनर्जी शिफ्ट बढ़ गई है, क्योंकि वो उनको रोकने के लिए एक आधी शिफ्ट जाती है उसमें। तो गॉड ब्लेस यू एंड कीप and always be as energetic as you are, because that's your magic. रामलीला फिल्म की खास बात है कि रोमांटिक फिल्मों से हटकर संजय इस फिल्म में कुछ धमाकेदार एक्शन भी करने वाले हैं, जिसे लेकर रणवीर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। First time Mr. Bhansali is doing action, and there is lyricism in everything that he does, and there is lyricism in the action as well, and it looks absolutely stunning. But the film really is a wholesome Hindi film. You know, इसमें romance है, गाने हैं, डांस है, एक्शन है, ड्रामा है, बैंटर है, so you will get everything that you look for in a nice wholesome packed to the hilt Hindi film. सफारियों का नया टॉप। वेल ये फिल्म 15 नवंबर को रिलीज होने वाली है और अब देखना है कि संजय लीला भंसाली की लीला बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन की क्या लीला दिखाती है। तो चलिए बॉलीवुड की इस लेटेस्ट हॉट एंड स्पाइसी अपडेट के बाद लेकर चलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट सेगमेंट चार्ट बस्टर्स में और सुनाते हैं आपको आज के टॉप चार्ट बस्टर्स। जाने रे जाने मन जाने है रंग रंग गुलाबी है प्रीत रो, जाने रे जाने सब जाने है रंग रंग गुलाबी है प्रीत रो। गुलाबी डोरी है रे, बंदी है चोरी है रे, नारों काटों की है ना सीना चोरी है रे, गुलाबी। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, नॉन स्टॉप पारे आज की पारे सेलिब्रेशन तेरे। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तुझ पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा, तेरा रास्ता जो रोकू चौंकने का नहीं, तेरा डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं। तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ, तू मेरे अगल बगल आ, मैं तेरे अगल बगल। अरे पैसा दे तमाशा दे, नाचेगी पिंकी फुल टू लेट, आंसर है सारे सवालों की। मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। इंजन दिल का धड़क रहा है, हाय हो गया पारा। तेरे गालों का फेवरेट है दिल वालों का, so let's do it baby, do it baby, do ब्रांड मस्ती, ब्रांड मस्ती, ब्रांड मस्ती, बा 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 बा, ब्रांड मस्ती, ब्रांड मस्ती, बा 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 बा। तो दोस्तों चार्ट बस्टर्स के बाद गॉसिप्स का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की इश्कज़ादी परिणीति चोपड़ा की, जो आजकल अपनी शुद्ध देसी रोमांस से सबको अपना दीवाना बना रही है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी डार्लिंग सिस प्रियंका चोपड़ा यानी बिग जॉब्स को भी काफी पीछे छोड़ दिया है और आजकल ये फ्लॉन्ट करती फिर रही हैं अपनी इस कामयाबी को पूरे बॉलीवुड टाउन में। हर ब्रांड्स का भी ये फेवरेट फेस बनी हुई है। हाल ही में परिणीति पहुंची एक इवेंट पर, जहां पर उन्होंने शेयर की काफी बातें। The hottest beauty of Bollywood, परिणीति चोपड़ा is on the cloud these days। भाई हो भी क्यों ना, आजकल फिल्मों में परिणीति चोपड़ा का सिक्का जो चल रहा है, और तो और उन्होंने इस रेस में अपनी डार्लिंग सिस्टर पिगी जॉब्स यानी प्रियंका को कहीं पीछे छोड़ दिया है। चोपड़ा सिस्टर्स की बॉक्स ऑफिस वॉर तो ज्यादा पुरानी नहीं और पिछले दिनों तो ये वॉर गॉसिप बॉन्गर्स का फेवरेट टॉपिक बनी हुई थी। But the little Chopra sister Parineeti wins the race with the blockbuster success of her recent release
शुद्ध देसी रोमांस। और आजकल परिणीति अपनी इसी सक्सेस को हर जगह फ्लॉन्ट करती नजर आती हैं। परिणीति ने जब से बॉलीवुड में एंट्री की है, उनकी किटी में है बस हिट्स ही हिट। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की परिणीति पहली पसंद बनी हुई है। और सिर्फ फिल्म ही क्यों, हर ब्रांड चाहता है परिणीति की सुपर सक्सेस को कैश करना। परिणीति चोपड़ा इज द फेस ऑफ कॉस्मेटिक ब्रांड निविया और हाल ही में पहुंची परिणीति ब्रांड की न्यू कॉस्मेटिक रेंज को लॉन्च करने। यहाँ पर परिणीति ने बांधे अपने ब्रांड की तारीफों के पुल। यही नहीं, परिणीति ने तो ये तक कह दिया कि वो तो शुरू से ही इस ब्रांड की दीवानी है। I love the smell of the products, and I'm genuinely saying this, and I used to use the product even before I was chosen as the face. I've always only used Nivea on my face because, you know, since generations it's been in my family. And I think it never gives me a rash. I'm never allergic to it. It really suits my skin. So I totally depend on it. Well, परिणीति apart from brand promotion अपनी recent release शुद्ध देसी रोमांस का अपना एक्सपीरियंस ही बता दीजिए। Oh, for sure. I think it's completely real. In fact, there's nothing filmy about Desi romance at all. I'm not saying कि हर youngster अपनी शादी से भाग जाता है या वो शादी नहीं करना चाहता है या लिव इन रिलेशनशिप में होता है, बट जो माइंडसेट है रघु, गायत्री और तारा का is definitely similar to every youngster that's there in the country. Well, जब यहाँ परिणीति से इस फिल्म में उनके स्मोकिंग सीन्स के बारे में पूछा गया तो परिणीति ने कहा that she does it for the film and her character. Not at all. I myself am not a smoker, and I didn't start smoking seeing myself smoke or actually smoking. I had to actually learn how to smoke for 2 weeks, and it used to give me a headache every day, and I used to hate it. I used to hate the smell of it. I hate the idea of cigarettes. And I used to curse Manish every day कि स्क्रिप्ट में ऐसा क्यों लिखा है कि गायत्री स्मोक करती है, but I did it for the role and everybody should know that I've done it for the role. I'm not standing up there and saying ये देखो कितनी अच्छी चीज़ है प्लीज करो. Not at all, not at all. I think the youth is much more intelligent than that, yeah. परिणीति, जरा जाते जाते अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता दीजिए। Well, my next release will be Hasi To Fasi, which is Dharma's film with Siddharth Malhotra. And then I'm doing a film with Aditya Roy Kapoor, which is directed by Habib Faizal. Then I'm doing Kill Dil, which is Shad Ali's next film with Ranveer, Ali and Govinda. And then 2 more, but they're not announced. तो चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट बॉलीवुड अपडेट के पास। जी हाँ दोस्तों, आने वाली फिल्म बॉस से अक्षय कुमार के साथ नजर आने वाले हैं आदिति राव हैदरी और शिव। आदिति इसमें रोमांटिक अंदाज में नजर आएंगी शिव के साथ, जो फिल्म में प्ले कर रहे हैं लीड रोल। इस फिल्म में इन दोनों के रोमांटिक अंदाज के साथ साथ एक बार फिर से देखने को मिलेगा अक्षय कुमार का जोरदार एक्शन। और आजकल आदिति और शिव दोनों ही लगे हुए हैं जोर शोर से फिल्म को प्रमोट करने में। अब जिंदगी तुझे तकलीफ नहीं देगी, वो तकलीफ देगा तुझे। बॉस बन के अक्षय एक बार फिर से दिखाएंगे बिग स्क्रीन पर अपने सुपर एक्शन का सुपर जलवा इन द मूवी बॉस। काफी वक्त बाद अक्षय अपने फुल टू एक्शन धुआंधार अवतार में नजर आने वाले हैं। इसमें उन्होंने अपने दुश्मनों को अपने स्टाइल में धो डालने की पूरी तैयारी कर ली है। बॉस का खून बोलता नहीं, खोलता है, और जब ये खोलता है तो ये बॉस एक एक को फोड़ता है। इस फिल्म में अक्षय के साथ नजर आएंगे बॉलीवुड के 2 न्यूबीज, जिसमें शामिल हैं द सिजलिंग मर्डर 3 गर्ल अदिति राव हैदरी एंड द न्यू टैलेंट शिव पंडित। आजकल ये दोनों यंग टैलेंट खूब जोर शोर से लगे हुए हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने में। हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के लिए रखा गया एक इवेंट, जिसमें खूब मस्ती भरे मूड में नजर आए शिव और अदिति। अदिति से जब पूछा गया कि कौन है इंडस्ट्री का रियल बॉस, तो देखिए कितनी स्वीटली ले लिया उन्होंने अक्षय कुमार का नाम। अक्षय बॉस मैं नहीं बनी हूँ, बॉस अक्षय सा बने,
लेकिन आई थिंक मर्डर 3 के बाद ये मुझे दिस वाज द फिल्म दैट एक्साइटेड मी द मोस्ट. मैंने ऐसी टाइप की फिल्म कभी करी नहीं थी और मुझे करनी थी. मज़ा आता है और स्केल भी ऐसा है, इट रीचेस आउट टू मोर पीपल. अब जब अदिति ने भी कर दी है अक्षय की तारीफ, तो भला शिव भी क्यों अक्षय की तारीफों के कसीदे पढ़ने में पीछे रहते. उन्होंने भी जाहिर कर दी अक्षय से जुड़ी अपनी एक्साइटमेंट. एक्चुअली मैंने अक्षय के साथ काम करके ये सीखा है कि आई डोंट थिंक आई रियलाइज कि व्हाट अ बिग सुपरस्टार ही इज टिल आई एक्चुअली फेस द कैमरा विद हिम, क्योंकि मैं उनको पिछले साल अक्टूबर से जानता हूँ. वो बहुत ही अनअज्यूमिंग किस्म के आदमी है. आई थिंक द थिंग विद अक्षय इज दैट उनकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी कॉन्फिडेंट एंड काम एंड सिक्योर किस्म की पर्सनालिटी है कि आई थिंक यू कांट हेल्प बट काइंड ऑफ बी एनामर्ड बाय हिम एंड काइंड ऑफ रिस्पेक्ट हिम and look up to him, and which is what I've learned from him, which is I think what I will take into my own learnings. He's been a great guy to work with. He has a fantastic energy. वेल, इस फिल्म में अदिति नजर आ रही हैं इन अल्ट्रा ग्लैम लुक, और यहाँ भी उन्होंने अपनी बिकनी कंट्रोवर्सी पर क्लैरिफिकेशन दे ही डाली. Actually, you know, bikini is just another garment. I'm sure every girl who swims over here has worn a bikini when she's in a pool. जो hoo-ha बनाते हैं bikini के ऊपर, I think वो चले जाना चाहिए, because that is in fact the wrong way to look at it. It's just a garment. It's a very beautiful garment. और एक लड़की के लिए to be happy with her body and to be happy with her femininity is fine. In fact, I feel that everybody today should grow up and just treat a bikini like any other piece of clothing. वेल, इस फिल्म में रोमांटिक लीड प्ले कर रही अदिति और शिव ने यहाँ अक्षय के साथ कंपेयर किए जाने पर कहा कि अक्षय उनके सीनियर हैं. That's why उनके साथ उनका कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है. Yes, we are the romantic lead in the film, and story कुछ ऐसी है कि उनके ऑपोजिट लड़की नहीं रहती, और आई थिंक हमारे रोमांटिक ट्रैक की वजह से मतलब स्टोरी आगे बढ़ती है. हाँ, आई थिंक ऐसा तो कुछ नहीं है, उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है कि अगर उनके पास लड़की नहीं, मेरे पास लड़की है. तो चलिए अब बात करते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और चैरिटी इवेंट्स की. अक्सर हमने देखा है कि बॉलीवुड सेलेब्स चैरिटीज के लिए कुछ ना कुछ शेयर देते ही रहते हैं, और हाल ही में मलाइका अरोड़ा खान पहुंची एक ऐसे ही चैरिटी को सपोर्ट करने. लेट्स हैव अ लुक. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अक्सर सोशल कॉज के लिए वर्क करते हैं, और सलमान खान के बाद उनकी फैमिली का एक और मेंबर इन सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए आगे आया है, और वो है उनके छोटे भाई अरबाज खान की वाइफ मलाइका अरोड़ा खान, जो एक इवेंट पर पहुंची सोशल कॉज को सपोर्ट करने. यहाँ पर मलाइका ने बताया कि चैरिटी को सपोर्ट करने के लिए बहुत से लोगों को आपस में जुड़ने की जरूरत होती है, और ये वाकई काफी ज्यादा चैलेंजिंग जॉब है. एक बात हमेशा रहती है जहाँ पे हमें अगर हमें फंड्स इकट्ठा करना हो तो वो काफ़ी मुश्किल रहता है, बिकॉज यू हैव टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पीपल, you have to meet a lot of people and hope that they will also join in your cause. I think that is the only stress that I have confronted. मलाइका ने यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया विमेन एम्पावरमेंट पर, और मलाइका ने सबसे ज्यादा कंसर्न दिखाया विमेन की तरफ बढ़ते क्राइम पर, जहाँ पर उन्होंने कहा कि कानून को और मजबूत करने की जरूरत है. Of course we fear our security, लेकिन I think this is something which is a very important matter, whether it is a police, whether it is a government. जो हमारे जो policies है वो सब change होना चाहिए to make sure that women are respected, protected in today's day and age and in today's society. Unfortunately, women are always looked as just mere sex objects, which that mindset has to change, and that change can only come about with education. It can only come about with change of policies, where the government has to step up, and hopefully that's when we can truly believe that we are living in a safer society. मलाइका ने कहा कि चैरिटी कम्स फ्रॉम हार्ट, हर किसी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. इस इवेंट पे जो मलाइका से पूछा गया कि वो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करती है,
तो ये था मलाइका का जवाब कि कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं आती। Like we say, charity starts at home. It starts with your immediate, your help in the house, the people who work for you. That is where you have to actually display a certain amount of charity. I don't think I am in a position to sit down over here and tell you how much you should be doing or what you should be doing and in how much capacity. It's something that comes from within. If you feel for it, then you should do it. It's your good deed for the day. तो दोस्तों, बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स तो हमने आप तक पहुंचा दी, लेकिन अब वक्त है आपको बताने का कि बॉलीवुड में वो कौन सी मूवी है जो तैयार है आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अपना धमाल दिखाने के लिए। आइए दिखाते हैं आपको फिल्म का प्रोमो। कली को टाइम पे छोड़ देना, नहीं तो मैं शॉमी को फोन करके बोल दूंगी। बेटा 5 मिनट्स के लिए यहाँ बैठो, मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ। भाई साहब, इस गाड़ी में एक बच्ची बैठी थी, आपने देखी तो नहीं? कहाँ है? छोटी बच्ची थी गाड़ी में, देखी क्या? नहीं देखा। फोन बज रहा है तुम्हारा। बहुत बड़ा हीरो है, छोटी लड़की को गाड़ी में अकेला छोड़ के जाता है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम राहुल कपूर है। वार्ष्णेय लिखा है। सर, एक्टर लोग ऐसा करते हैं, घर पे एक नाम और पर्दे के लिए दूसरा नाम। क्यों? अमिताभ बच्चन का क्या है नाम घर पे? बेटी जिंदा मांगती है तो 10 लाख का इंतजाम कर। हम किसी से 20 लाख उधार नहीं ले सकते क्या? देख, उसके नए बाप को बोल, वो या तो पैसे देगा नहीं तो कली को कहीं न कहीं से ढूंढ निकालेगा। ये बच्चे दे दे। डालो इसको। हेलो, तेरी बेटी मेरे पास है, तुझे जिंदा वापस चाहिए तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करके रखना। 50 लाख? 65 लाख। हेलो, तेरी आवाज है ना? तेरी बेटी है तो मेरी भी बेटी है। पापा, मुझे आपके पास आना है। तो दोस्तों, बॉलीवुड गॉसिप्स का ये था हमारा आज का स्पाइसी एपिसोड। जाते हैं इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात बॉलीवुड के गलियारों की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग गुलिस्तान न्यूज।